Okay, we'll start our session. Other will join late. We'll let it be. In morning session, we have started our genetic algorithm. Genetic algorithm means providing the better solution from the previous solution. ओके, आपल्याला एखाद्या सोल्युशनचा बेटर सोल्युशन फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करणार आहे तर वी आर युजिंग जेनेटिक अल्गोरिदम. Okay, in biological we can say that if two persons are there, okay, the two parents are there, by combining two parents, okay, we are producing the new offspring or the baby, we can say that. दोन पॅरेंटच्या सहाय्याने आपण काय करतोय तर नवीन एक व्यक्ती जे काय बेबी म्हणतोय आपण त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करतोय, हॅव्हिंग बेटर सोल्युशन्स और द बेटर फीचर्स as compared to that two parents. Nothing but our genetic. And algorithm we have discussed means in our artificial intelligence, genetic algorithms are used to find better solution from the previous. Okay, similarly we have seen one example. Okay, our journey start from mankin or the we can say that monkey. आपली जी काय ह्युमनची जर्नी जे काय आहे किंवा ह्युमनचं लाईफ जे काय आहे ते कुठून स्टार्ट झालेलं आहे, एका माकडापासून चालू झालेलं आहे आणि ते कुठपर्यंत आलेले आहे तर अप टू दिस लेवल वी हॅव रीच. ओके, मीन्स at the stage of monkey, okay, with two parents they have generated new baby. Okay, this one, that baby. Okay, by okay means this as compared to this one they have generated better solution. ह्याच्याशी जर कम्पेअर केलं तर हे काय आहे तर बघितलं तर बेटर सोल्युशन. नाउ with these two parents again they have generated next solution. The better solution is nothing but this person. ह्या व्यक्तीपेक्षा हे जर हे बेबी असेल तर तुम्ही बघू शकता की ह्याच्यापेक्षा हे चांगलं सोल्युशन मिळालं. ओके, बाय मेटिंग अगेन these two persons again they have generated one more person or that person we can say that as compared to this one. Okay, this is better solution as compared to previous one. And nowadays you can find, okay, as compared to previous one, this one is the far better solution. Okay, we get. Okay, हे याच्यावरून आपल्याला चांगल्या पद्धतीने सोल्युशन मिळाले हे आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. सिमिलरली आता ही जी काही ह्युमन बॉडी आहे तर ह्युमन बॉडी कशापासून बनलेली आहे, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. आता भरपूर अशा सेलच्या साह्याने काय बनलेली असते तर आपली बॉडी जनरेट झाली. आता सेल मध्ये काय असतं तर त्या ठिकाणी बघितलं तर सेल कन्सिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. अगेन इनसाइड दॅट न्यूक्लिया chromosomes are there, and inside that chromosomes, okay, our DNA is there. Okay, and this DNA is unique for every animal or the human. प्रत्येक ह्युमन आणि ॲनिमलचा हा डीएनए हा वेगवेगळा असणार. ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो वी आर जनरेटिंग जीन. फर्स्ट वन इज द सेल ऑफ द न्यूक्लिया इज नथिंग बट आवर जीन. 0, 1 is the gene of any binary genetic algorithm. Okay, this one is the binary genetic algorithm. Inside that the 0 or 1 is the gene of any element. Okay, 0 and 1 काय तर आपले जीन म्हणतोय. आफ्टर दॅट बाय कंबाइनिंग नंबर ऑफ जीन्स वी कॅन डेव्हलप द क्रोमोझोम्स. ओके, या जीनला भरपूर असे कंबाईन केले तर त्यापासून काय प्रिपेअर होणार आहे तर क्रोमोझोम प्रिपेअर होईल. अँड अगेन वी कॅन से दॅट बाय कंबाइनिंग ऑल दिस जीन्स अँड क्रोमोझोम्स वी कॅन प्रोड्यूस द population or the person, we can say. Similarly, you can see here
In this diagram also you will understood, if two parents are there, okay, parent 1 and parent 2, by mating these two each other, okay, it will produce the new offspring. Okay, this offspring, we can say that this offspring is the combination of parent 1 and parent 2. parent 1 आणि parent 2 काय असणार आहे, कॉम्बिनेशन प्रिपेअर होऊन काय केलेलं असणार आहे, तयार झालेलं असणार. नाउ नेक्स्ट वन इज द, okay, this internal structure of this our biological structure. Similarly we can produce in genetic algorithm. Okay, in morning this is related to that history and background we have seen in the morning lecture. Just we will go to the, okay, next we have seen the chromosomes and gene, how we can define. Now only we have discussed. After that genotype and phenotype. Okay, we have seen this in morning only. Wait a minute. Okay, sorry for disturbance. Okay, in morning also we have discussed genotype and phenotypes. Genotypes means particular set of a genome is known as a genotype, and a random manner, it is nothing but phenotype. Okay, we have seen this in morning also. Again, requirement, what is requirement, and a representation of any genetic algorithm we have seen. It is generally it is represented in the bit string, means it is in the form of zeros and one. Okay, after that we have seen a fitness function. Fitness function means we can compare with, okay, we can compare with the output, the amount of fitness. Okay, in morning we have seen two example. If number is 1 2 3 4 and another other that example, okay, 1 2 3 4 5, and if I take the another number of the output we want to achieve, that number is, suppose it is 6 5 3 2 4. Then if you see these two output, this one is the output, and if you compare this to the previous one, okay, how much number is matching with the input? This one is the output, our output, and this one is the input. If you check here, two are there, threes are there, fours are there, means 5 also there, means we can say that the fitness value of this number is 4. Okay, because it is matching up to the 4 digit. Okay, it is matching up to the 4 digit. Okay, similarly in individual and rank individually, okay, we can find the fitness value or the fitness function. Okay, just now next one is the, we have seen basics of, okay, genetic algorithm. Okay, we have seen that in morning only. Okay, where we have seen up to or we have started this general algorithm for genetic algorithm. Before that, the most common type of genetic algorithm work like this. A population is created with a group of individual created randomly. Means
our genetic algorithm always start with creating population. ओके, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. हे कुठून स्टार्ट होणार आहे तर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम और द क्रिएटेड फ्रॉम population is created group of individual. Other I will just highlight this one. It is starting from population is created with group of individual created randomly. These individuals in the population are the evaluated. Next, the evaluation function is provided by the programmer and give the individual the score based on how well they perform at the given task. Two individuals are then selected based on their fitness. The higher the fitness, the higher the chances of being selected. Okay, the number we have seen the fitness value more and more, then we can select as a parent. Okay, this individual then reproduce to create one more offspring, after which the offspring are muted randomly. Offspring म्हणतोय, हे offspring म्हणजे काय? By mating two parents generating new baby. ओके, दोन माणसापासून एक नवीन बेबी तयार होतो, त्याला मी काय म्हणतोय तर ऑफस्प्रिंग असं म्हणतोय. ओके, नाहीतर यू डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय ऑफस्प्रिंग अँड ऑफस्प्रिंग. ओके, मीन्स जनरेटिंग न्यू genetic algorithm, or the we can say that new baby from the two parents, nothing but our offspring. This continue until the suitable solution has been found or a certain number of generation have passed, depend on the need of the program. Means it will start with the population, after that it will generate the function, okay, fitness function, and after that it is resumed each other. Next one is the initialization. The first step is the initialization of function of the population. Okay, how that initialization process is done? Okay, initialize may individual solution are randomly generated to form an initial population. The population size depend upon the nature of problem, but typically contains several hundreds or thousands of possible solutions. Means at initially we are taking the number of solution of the population, and on that we are choosing certain parents. Okay, depend upon the fitness value. ओके, म्हणजे काय करणार आहे, सुरुवातीला भरपूर व्यक्ती घेणार आहे आणि ती ज्याची फिटनेस जास्त आहे तर त्याची काय करणार आहे तर त्या ठिकाणी तर आय विल टेक दॅट पर्सन, ओके, ऍज अ पॅरेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी इफ आय वॉन्ट टू प्रोड्यूस, ओके, आय वॉन्ट टू प्रोड्यूस सचिन तेंडुलकर, then I have to take, okay, the genes of Sachin Tendulkar. ओके, म्हणजे सचिन तेंडुलकर जर मला नवीन प्रोड्यूस करायचे असेल तर मला त्या ठिकाणी काय करायला लागेल तर सचिन तेंडुलकरचे जे जेन्स और डीएनए यूज करून मी सचिन तेंडुलकर त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करू शकणार. ओके, नेक्स्ट, ट्रेडिशनली द पॉप्युलेशन इज जनरेटेड रँडमली कव्हरिंग द एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल सोल्युशन, द स्क्रॅच स्पेस. Okay, the solution may seeded in areas where optimal solution are likely to be founded. Okay, this is about the theoretical concept. Means they have written traditionally what we are doing to select any parent. Okay, parent select करताना आपण कशा पद्धतीने select करतो, हे traditional method. Next, selection. Okay, second most important criteria is selection. Now आता तुमच्याकडे 2 लाख व्यक्ती आहेत किंवा पॉप्युलेशन आहे आणि त्यामधून तुम्हाला एक बेस्ट व्यक्ती ज्याची फिटनेस जास्त आहे, सगळ्यात बॉडी बिल्डर जास्त पर्सन आहे, असं तुम्हाला त्या ठिकाणी सिलेक्शन करायला सांगितलं. तर कसं सिलेक्ट कराल? देयर आर सर्टन टेक्निक्स आर देअर टू फाइंड द स्पेसिफिक ऑफ द फिटनेस, मोर फिटनेस व्हॅल्यू पर्सन. ओके, ते टेक्निक कोणते? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. आधी सिलेक्शन म्हणजे काय करणार आहे तर वी आर selecting the parent from the population. ओके, 1 लाख व्यक्ती आहेत, या 1 लाख व्यक्ती मधून मला एक हा पॅरेंट त्यातून सिलेक्ट करायचा आहे ज्याची फिटनेस एकदम हाय आहे. म्हणजे तो काय करेल तर हाय फिटनेस वाला व्यक्ती घेतला तर काय करेल तर इट विल प्रोव्हाइड द बेस्ट सोल्युशन. ओके, लक्षात येते सगळ्यांना? म्हणजे त्या ठिकाणी जर
मी 1,00,000 व्यक्ती घेतले आणि त्यामध्ये मला सचिन तेंडुलकरचे डीएनए घ्यायचे असतील तर मला त्यातलं जो कोणाचा सचिन तेंडुलकरचा डीएनए मॅच होत आहे असा हायेस्ट फिटनेस असलेला मला तो व्यक्ती मला फाइंड आउट करायला लागेल आणि तो व्यक्तीचे जे काही जीन्स आहेत ते मला काय करायला लागतील तर प्रोड्यूस करायला लागतील तरच सचिन तेंडुलकर प्रिपेअर होणार. मीन्स व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू फाइंड आउट that with the help of certain techniques. Just we will go with next one. During the each successive generation and proportion of the existing population is selected to breed a new generation. Okay, means which are finding the best solution, and that solution it depend upon the parent. Okay, जे काही parent आहे त्यावरचा पुढचा जो काही व्यक्ती किंवा न्यू ऑफस्प्रिंग जो तयार होणार आहे तो डिपेंड असणार. Okay, if you are choosing the wrong parent, then offspring also it will produce wrongly. Okay, next one, individual solutions are selected through a fitness based process where fitter solution as measured as a fitness function. Okay, certain selection methods fitness such solution properly select the best solution. Other method rated a random sample population of process may be very time consuming. Most functions are designed so that small proportion of less fit solution are selected. This helps keep the diversity of the population large, preventing premature, convergent or poor solution. Popular and well-studied selection methods include wild selection and the tournament selection. These are the two methods from that we are selecting. We are discussing with briefly these two methods. Okay, tournament selection method and rotated wheel selection. Next one is the in rotated wheel selection, individuals are given a probability of being selected. This is a directly proportional of their fitness. Two individuals are the chosen randomly based on their probabilities and production offspring. Okay, next. This one is the rotated wheel selection pseudocode. Okay, this is pseudocode they have provided. Okay, now this is selection criteria. Okay, you will find. Can you see this screen? Okay, in that initially we can start. After that, finding the initial population means we are finding the thousands, 2,000 people. After that, okay, coverage. Okay, we are finding the evaluate the fitness, and after that. In selection, there are two parameters. First one is evaluate the fitness and select parent. Okay, how can you evaluate the fitness? With the help of different methods. Okay, which are the methods? Just we will go. Okay, these are the some methods for selection purpose. Rotated wheel selection, rank based selection, tournament selection, and steady state selection. Just we will go one by one how to that select with from population मधून एक पॅरेंट चाइल्ड हे कसा पद्धतीने फाइंड आउट करायचं हे आपण एक एक्झाम्पलच्या आणि ह्या मेथडच्या साहाय्याने बघणार. ओके, सिलेक्शन म्हणजे काय? सिलेक्ट इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम करंट पॉप्युलेशन फॉर प्रोड्युसिंग नेक्स्ट जनरेशन. नाउ हाऊ टू आयडेंटिफाय गुड सोल्युशन? Identify good solution in a population based on their fitness value. Okay, selection involves survival of the fittest. Okay, this one is very important. Selection involves survival of the fitness. Okay, how we can find? With the help of these four methods. Just we will take the first one is the rotated wheel selection. This selection it is done with the help of probability. Means thousand of, or you have seen, okay, one game inside that one wheel is there. Okay, and that wheel we are putting the one ball and that ball will strike to some number. Okay, मी काय करणार आहे तर एक बॉल आहे तो बॉल में है काय म्हणतो ह्याला आपण just I didn't understand that one. Okay, one game is there.
एक व्हील आहे, एक व्हील मध्ये एक बॉल असतो आणि ज्यावेळेस व्हीलला रोटेट करतो तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतो तर हा बॉल काय करेल तर एका नंबरवरती स्ट्राईक होईल किंवा रेस्ट होईल आणि त्यानंतर आपण त्या ठिकाणी ते काय आहे तर बेस्ट आहे म्हणून त्या ठिकाणी डिफाईन करतो. ओके, दॅट वन इज द means where initially we are finding the probable, okay, 1000 population is there. From 1000 probably we are finding the 10% having the more fitness. Okay, म्हणजे त्या ठिकाणी काय करणार आहे तर 10 लोक असं चूज करणार आहे त्याची फिटनेस जास्त असेल. हिअर फिटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिलेक्शन. जेवढी जास्त फिटनेस तो आपण त्या ठिकाणी सिलेक्ट करणार. ओके, हाऊ कॅन सिलेक्ट दॅट वन? Okay, we will take one example. Here you can see here, or the directly one video we will watch. In that they have, okay, they have shown how actually it is carried out. Just I will play that video. Good news for those who underline while reading. Did you ever struggle? दोस्तों, डिफाइनमेंट इंजीनियरिंग आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है. सिलेक्शन टेक्निक के बारे में बात करने वाला है. रोलेट व्हील सिलेक्शन के बारे में आज बात होने वाली है. बहुत ही छोटा वीडियो होगा, कम से कम समय लूंगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश रहेगी मेरे इस वीडियो में. तो भाई ये रोलेट व्हील सिलेक्शन क्या है, हमें करना क्या, सिलेक्शन कर रहे हैं ना हम लोग. सिलेक्शन मतलब क्या है? सिंपली हम लोगों को कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द इनिशियल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन देयर फिटनेस वैल्यू. जो जितना तगड़ा होगा, जो जितना ज्यादा फिट होगा, which is indicated by their fitness score, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी जीन्स को हम लोग अगले जनरेशन में पास ऑन करेंगे. और जो कम फिट होगा, जो दुबला पतला होगा, जो ज्यादा फिट नहीं होगा, तो उसे हम लोग भैया उधर ही रोक देंगे. तो यहाँ पे जो स्कीम हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं भैया उसे कि सिलेक्ट द बेस्ट, लीव द रेस्ट. व्हाट? सिलेक्ट करना है भाई बेस्ट लोगों को, बाकियों को छोड़ देना है. रेस्ट जो है वो बाकियों को छोड़ देना है. यहाँ पे यही फॉलो किया जा रहा है. ये स्पेशलिटी है जिसे हम कहते हैं भाई फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन. फिटनेस प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन मतलब जिन भी इंडिविजुअल्स का आप सिलेक्शन करने वाले हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फिटनेस. समझ में आ गया ना? तो जो भी आप सिलेक्शन करोगे जिन भी इंडिविजुअल्स का, इट विल बी डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन देयर फिटनेस स्कोर. जिसका ज्यादा, उसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड एज अ पैरेंट. And then obviously go to the reproduction phase and then carry out the crossover and mutation and just generate the new offspring. ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया. अब आते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर, बराबर, जो इस रोलेट व्हील को अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट करता है. एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन में सिर्फ 5 लोग हैं, बराबर, बहुत कम जनता है यहाँ पे, 5 ही लोग हैं और ये उनके क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन है. समझ लो A B C D E. ओके, एंड ये उन इंडिविजुअल्स के फिटनेस स्कोर है. ओके, दैट इज 5 2.5. तो इनका टोटल क्या है? 7 और 2 9 और ये 10. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका आ गया 10. तो ये टोटल सम जो है उनके फिटनेस स्कोर का वो यहाँ पे 10. अब यहाँ पे करना क्या हम लोगों को? ये रोलेट व्हील आपको दिख रहा है, दिस इज सिंपली द व्हील. यहाँ पे कुछ पोर्शन A ने ऑक्यूपाइड कर रखा है व्हील का, कुछ B ने, कुछ C ने, कुछ D ने, कुछ E ने. ये कैसे कर रखा है? ये कैसे कर रखा है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस 10 में से 5 कितना होता है, बराबर है कि? तो यहाँ पे 50% होता है वो. ठीक है, 50%. तो ये 50% जो है उस रोलेट व्हील का 50% एरिया इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द A. Why? Because this particular area occupied by A is actually proportionate to the fitness value. Is actually proportionate to the fitness value of that particular individual A. बराबर. उसके बाद अगर आप यहाँ पे 2 देखोगे that is 20%. तो ये 20% of the area is actually occupied by the individual B. Okay. फिर आते हैं यहाँ पे C के ऊपर. C ने कितना किया है? Only I think 5%. या only 5%. So C ने only सिर्फ 5% is covered. Okay. यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 15%. Okay. 15% is actually occupied of this whole roulette wheel by the individual D. और लास्ट में अगर देखोगे यहाँ पे 10% only. So 10% is occupied by the individual E on the roulette wheel. तो यहाँ पे according to their respective कि भाई उनका फिटनेस स्कोर क्या है, उस हिसाब से रिलेटिवली हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो एरिया ऑक्यूपेंस है वो डिसाइड करते हैं कि भाई कितना एरिया वो ऑक्यूपाइड करने वाला है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिलेटिवली.
to the other individuals. ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये क्या तीर मार रहे हैं हम लोग, कहाँ तीर मार रहे हैं और क्यों तीर मार रहे हैं भाई? तो कहीं तीर नहीं मार रहे, यहाँ पे कहीं तीर आप पे चलने नहीं वाला, ये सिर्फ ठहरा हुआ तीर है, इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है या फिर एक फिक्स्ड पॉइंटर है, ओके, जिसे हम लोग यहीं पे ठहराते हैं। जिसको घुमाना है वो इस व्हील को घुमाना है, हमें क्या करना है, इस व्हील को घुमाना है, कहीं भी घुमाओ, जहां मन हो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी मन हो, तो हमने इसको घुमा दिया। अब जब घुमा दिया तो ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, और ये रुकेगा कहाँ, वो मैटर करता है। अगर मान लीजिए रुका, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, तो ये जो पॉइंटर है ये किसी ना किसी एरिया को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब किसी ना किसी इंडिविजुअल के ऑक्यूपाइड एरिया को वो पॉइंट करेगा, करेक्ट और नॉट? तो वो जिसे पॉइंट करेगा, जिस एरिया को, जो एरिया किसी एक इंडिविजुअल ने ऑक्यूपाइड करके रखा होगा, उस इंडिविजुअल के एरिया को अगर ये पॉइंट करता है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाता है, तो वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाता है, एंड उसको हम एक पदवी दे देते हैं कि भाई तू अभी पेरेंट है। नाउ यू आर अ पेरेंट। नाउ एज अ पेरेंट आपको सिर्फ एक काम है कि भाई जाओ रिप्रोडक्शन फेज में एंड जस्ट जनरेट द ऑफस्प्रिंग्स एज इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम टर्मिनोलॉजी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे, किसके साथ? यहाँ पे सी और कुछ हद तक ई, इन दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे इनका एरिया बहुत ही कम है, तो इनके चांसेस भी बहुत कम है टू गेट सिलेक्टेड, और इसका तो भाई बहुत सारा एरिया है, तो ये बहुत मार्च करेगा क्योंकि ये बहुत सिलेक्ट होगा, बराबर है कि नहीं? इट विल बी गेटिंग सिलेक्टेड, क्योंकि इतना एरिया तो ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा है। सो मोर द एरिया ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल, मोर द पॉसिबिलिटी दैट इट विल बी सिलेक्टेड एज ए इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम लोग अगर ढंग से देखें तो क्या है, फिटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से एरिया occupied by the particular individual in the roulette wheel and directly proportional to the selection, बराबर? तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो कि जितना ज्यादा फिटनेस उतना ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड, बराबर? उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे नाइंसाफी इनके साथ होती है थोड़ी बहुत, ठीक है? और बाकी ये तो हम लोग बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और रेस्ट को लीव करते हैं, वी डोंट सिलेक्ट देम। यही था दोस्तों रोलेट व्हील सिलेक्शन की टेक्निक, जो मैंने आसान तरीके से पूरी की पूरी आपको बता दी है इस वीडियो के थ्रू। Okay, I hope you understood roulette wheel selection. Inside that, okay, similar that game, one game is there. Okay, one wheel is there, and on that wheel we are writing the numbers, and we are throwing one ball. Okay, when that ball will stay at one number, okay, that number is selected. Okay, तो number आपण काय करतो तर selected. Okay, that only you will find here. Okay, similarly, okay, I have taken, okay, 5 chromosome or 6 chromosome having the fitness value and the probability to select, means area I have divided, and depend upon that area, the area, maximum area, we can say that the maximum possibility of to select. Okay, ज्याचा area maximum असेल तर त्याची सिलेक्शन क्रायटेरिया काय असणार तर मॅक्झिमम असेल. नेक्स्ट, रँक सिलेक्शन. हाऊ कॅन रँक? Okay, rank means, okay, we are saying that individuals are arranged in ascending order of their fitness value. Ascending order मध्ये आपण काय करणार आहे तर फिटनेस व्हॅल्यू डिफाइन करणार आहे. ओके, मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट टू वन. आता मिनिमम जी काही फिटनेस व्हॅल्यू असेल तर त्याला काय करणार आहे तर रँक नंबर 1 प्रोव्हाइड करणार. ओके, आणि जर 2 असेल तर त्यापेक्षा लार्जर असेल, 3 असेल तर त्यापेक्षा लास्ट असेल, म्हणजे त्यापेक्षा लार्जर रँक असेल. मीन्स इफ आय टेक one as, okay, having fitness value 0.5, or the with one example only will understood. Okay, here fitness value, this, okay, initially these fitnesses are there. Okay, 1 2 3 5. Now smallest value, as I will write rank number 1. Okay, which one having a small value, you will find the fitness value. Okay, this 6 is the smallest value. I will write rank number 1. After that, the larger than 6 one is the 28 only. Okay, 28 I will write rank number 2. Like that only I will write the ranks, and the larger rank, it will indicate the larger
fitness value. Okay, ती काय असणार तर larger fitness value, and depend upon that only we can choose the that parent. Okay, त्यावरनच जे larger fitness value आहे त्याच्यावरनं आपण काय करणार आहे तर fitness value choose करणार आहे. Okay, again with sequence of that only. Okay, I will play that video, means you will understood that. My job is to इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, सीखने वाले, जानने वाले, डिस्कस करने वाले अबाउट वेरी गुड स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, रैंक बेस्ड सिलेक्शन। ये रैंक बेस्ड सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये टेक्निक क्या है, ये सारी चीजें एग्जांपल के साथ दोस्तों यहाँ पे समझने वाले। लेकिन पहला वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो ये समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज हमने पहले इसमें रोलेट व्हील जो एक सिलेक्शन टेक्निक थी वो देखी थी। रोलेट व्हील में क्या था कि बेसिकली ये जो आपका एक इंडिविजुअल ए था उसमें एक ड्रॉबैक था। क्या था कि ये जो एक इंडिविजुअल था ए, उसने ऑलमोस्ट 50% of the area of this roulette wheel was occupied by only that individual। मतलब 50% जमीन इस अकेले इंडिविजुअल ए ने हड़प के रखी थी, जमा के रखी थी, और उस वजह से बाकियों को जमीन नहीं मिल पा रही थी, बराबर। तो ये बड़ी नाइंसाफी हो रही थी। तो इस नाइंसाफी को थोड़ा दूर करना है, बराबर, सबको चांस दे रहे हैं हमें। तो इसलिए हमने एक मसीहा लाया, एक स्ट्रैटेजी लाई, दैट इज रैंक बेस्ड सिलेक्शन। अभी रैंक बेस्ड सिलेक्शन कैसे काम करता है, बराबर। अभी आप ढंग से देख सकते हो कि जो एरिया अभी ऑक्यूपाई किया है ए ने, अभी आफ्टर अप्लाइंग द रैंक बेस्ड सिलेक्शन ऑन द सेम एग्जांपल, इट इज लेस देन 50%। पहले वो 50% था जब हमने रोलेट व्हील सिलेक्शन अप्लाई किया था, और जब उसी एग्जांपल के ऊपर मैंने रैंक बेस्ड सिलेक्शन अप्लाई किया है तो ए का जो एरिया है वो अभी लेस देन 50%, लेस देन 50 क्या, लेस देन 40%, लेस देन 40% क्या, लेस देन 35% को यहाँ पे आ चुका है, और बाकियों को भी थोड़ा बहुत चांस मिला है टू गेट सिलेक्टेड, करेक्ट। तो यहाँ पे होता कैसे, यही वो एग्जांपल है, ये हमारे क्रोमोसोम्स है, फिर इंडिविजुअल्स है आपके पॉपुलेशन के पास, और यहाँ पे उनका फिटनेस स्कोर है। अब हमने क्या किया है, कुछ अलग किया, हमने रैंक दिया। तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा उसे रैंक 1 देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में सुना था ना, बच्चे ऐसे बोलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई मैं पीछे से नंबर 1 आया, तो यही हमें यहाँ पे करना है। मैं पीछे से नंबर 1 आया मतलब क्या, कि जिसका सबसे कम फिटनेस स्कोर है, जो बहुत ही कमजोर है, जिसका सबसे कम फिटनेस वैल्यू है, उसे हम रैंक 1 दे देते हैं, उसे हम रैंक 1 दे देते हैं। यानी कि इन सब में जो सबसे कम फिट है वो ये है फिटनेस वैल्यू, तो उसे मैंने रैंक 1 दे दिया। उसके बाद जो थोड़ा फिट है, यानी कि इसके बाद है ये, यानी कि ये 1, थोड़ी सी ज्यादा इसकी फिटनेस वैल्यू थी, इसको रैंक 2 दे दिया। इसके बाद थोड़ा सा और 1.5 वाले को 3rd रैंक दे दी। उसके बाद यहाँ पे 4 रैंक दे दी, और लास्ट में हमने यहाँ पे जिसका सबसे ज्यादा है एक्चुअली फिटनेस वैल्यू, उसे 5 दे दी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने n इंडिविजुअल्स आपकी पॉपुलेशन में है, n इंडिविजुअल्स आपकी पॉपुलेशन में है, तो उनमें से जो सबसे कम फिट वाला बंदा होगा, जिसकी सबसे कम फिटनेस वैल्यू होगी, उसे रैंक 1 दे दो, और जिसकी सबसे ज्यादा फिटनेस वैल्यू होगी उसे रैंक n दे दो। सिंपल सी बात है, बराबर। ये मेरा कहने का मतलब है। तो चलो रैंक दे दी। अब रैंक के बेसिस पे इसके परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज मतलब क्या कि 5 डिवाइडेड बाय दिस टोटल है, यानी कि 50 into 100, एक तरीके से ऐसे कर दो, बराबर। तो यहाँ पे आपको कुछ तो परसेंटेज मिलेंगे, सबके लिए करना है। तो ये मैंने ए के लिए किया, यहाँ पे अभी आप 4 रखो, फिर यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो ऐसे सबको रख के हमें उनके परसेंटेज निकालने हैं, बराबर। एंड इन परसेंटेज के बेसिस पे आपको इन इंडिविजुअल्स का जो एरिया ऑक्यूपेंसी है उस रोलेट व्हील पे डिसाइड करना है, बराबर, डिपेंडिंग ऑन दीज परसेंटेज। अभी हम लोग यहाँ पे फिटनेस जो है, फिटनेस की परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ऑक्यूपेंसी नहीं देख रहे, रैंक की परसेंटेज के हिसाब से ऑक्यूपेंसी को डिटरमाइन यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 5/15 into 100 करता हूँ तो कुछ 33.33% मिलता है। 4/15 into 100 करता हूँ तो ये परसेंटेज इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो अभी ये अगर पहले आप देखोगे रोलेट व्हील में, बिफोर अप्लाइंग द रैंक बेस्ड सिलेक्शन, इट वाज अबाउट 50%, ये कम से कम 50% था। तो ये 50% से अभी हो गया 33%, ताकि बाकियों को भी थोड़ी बहुत जमीन मिले रहने के लिए, थोड़ी बहुत सिलेक्शन की उम्मीद बाकियों को भी रहे। तो यहाँ पे मैंने ऑक्यूपाई कर लिया ए अबाउट 33% ऑफ द एरिया, फिर बी अबाउट 26.67% ऑफ द एरिया, फिर उसके बाद आता है सी के ऊपर, सी ने 6.67%, इतना एरिया उसको मिल गया। उसके बाद 20% और ये 13.3। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबको चांस दिया टू गेट सिलेक्टेड, और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली एवरीवन विल गेट सम
कुछ तो उम्मीद रहेगी उनको कि वी विल आल्सो बी गेटिंग सिलेक्टेड। पहले वाले में बहुत ही ज्यादा वन साइडेड होता था क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया ए को मिल गया था, लेकिन अभी सबको चांस मिल रहा है, जो कि एक मेन मोटिव था हमारे रैंक बेस्ड सिलेक्शन का। होप दोस्तों वीडियो को समझ में आ गया होगा, एग्जांपल समझ में आ गया होगा, मेरा तरीका समझाने का समझ में आ गया होगा। और okay, I hope you have understood the rank selection. Next one is the tournament selection. In tournament selection, we are making competition to each other and we are finding the fittest value. Means let's consider, okay, सगळ्यांना माहित असेल एखादी tournament or the cricket match. Okay, might be you have seen cricket match. Inside that, how we can take the how we can select the winner team. एखादी विनर टीम कशा पद्धतीने सिलेक्ट करतो त्या ठिकाणी एक मला मी माझ्याकडं नंबर ऑफ टीम आहे. ओके, आय हॅव टीम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, न्यूझीलँड, ओके, ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान, बांगलादेश. ओके, आय हॅव टू फायनलाइज आउट ऑफ दिस हु इज विनर. ओके, त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतील, वी हॅव टू, okay, just I will write here. Okay, okay, there are different teams are there. Okay. One team, second, third team, fourth team, fifth team आणि sixth team. Okay, ह्या 6 टीम आहेत आणि ह्याच्या पासून मला काय करायचं आहे तर आय हॅव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन or we have to find out the winner team. Then what we have to do, okay, त्यावेळेस आपण काय करतो तर we have to make competition between these two team. ह्या दोन टीम मध्ये मी काय करतो तर कॉम्पिटिशन, ह्या दोन टीम मध्ये काय करतोय तर कॉम्पिटिशन करतोय and these two having competition. Okay, and we are finalizing out of two, we are finalizing winners of each. Okay, या ठिकाणी काय करतोय तर प्रत्येकामधून एक एक विनर काढतो. After that, okay, these in between these we are going to select anyone. ह्या दोन्ही मधून काय करणार आहे तर एक एक सिलेक्ट केली जाणार आहे. Okay, this one is our semi final match, you can consider, and in between these two we are going to select the final, okay, winner. Okay, ह्यामधून काय करणार आहे तर फायनल विनर सिलेक्ट करणार. ओके, मी काय करणार आहे तर आय हॅव 6 टीम. फ्रॉम 6 टीम आय विल मेक वन टूर्नामेंट. इनसाइड दैट, ओके, एवरी we can say that every team is compete with the another team, and from these two team we are finalizing one team. Okay, here also from these two team we are finalizing one more, and from these two we are finalizing. Similarly, in here geometric, in our genetic algorithm also we are finding similar manners. Means we have population, okay, n number of population. From that each other we are finding the which one is the best fitness value. Okay, the ह्या ठिकाणी असेल तर suppose this person, this team having fitness value of 2, this having, let's consider 3, this having 7, this having 5, this having suppose fitness value 6, and this was having 8 value fitness value. Out of these two, okay, which one is selected? तर ह्या दोन्हीतलं चांगलं बेस्ट कोण आहे? Okay, 3 is the best fitness value, means I will choose 3. 7 and 5, out of these two, which one is the best? 7 is best, I will select that 7. Out of 6 and 8, the fitness, which one having more fitness? 8 having the more fitness. Now I will compete with these 3. Okay, now 3 and 7, out of these two, which one is the best? Okay, 3 and 7, which one is the best? 7 having more fitness. Now 7 and 8, in between, if you compare this, which one is the best? 8 is the best fitness value. Now if you compare these two, having which one having the best value? 8 having the best fitness value.
मीन्स विनर इज 8 और द पॅरेंट एलिमेंट इज 8, म्हणजे पॅरेंट एलिमेंट काय असणार आहे तर आपला 8 असेल. दिस पॅरेंट एलिमेंट वी आर सिलेक्टिंग अँड वी आर पासिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्शन सिस्टीम. ही काय करणार आहे, सिलेक्ट करणार आहे आणि पुढे आपण प्रोडक्शन सिस्टमला प्रोसीड करणार आहे. आय होप यू अंडरस्टूड दिस वन. मीन्स इन टुर्नामेंट वी आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर अँड वी आर फाइंडिंग द okay best parent. Okay, that I have written one example. Okay, these are the individuals and having fitness value. I will compete these two and I will select best one. Okay, just I have one video I will play also. You will understood with that video more clearly. तो स्टूडेंट 5 मिनट इंजीनियरिंग आज का वीडियो आपके बड़ा कमाल का होने वाला है. आज हम जानने वाले, देखने वाले, सीखने वाले, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी पॉपुलर फंडा कि भाई टूर्नामेंट सिलेक्शन क्या होता है. टूर्नामेंट सिलेक्शन, अभी हम लोग सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे. बेसिकली सिलेक्शन होता क्या है कि भाई हम लोगों को कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है. कहां से? हमारे इनिशियल पॉपुलेशन से उन इंडिविजुअल्स को मुझे सिलेक्ट करना है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिटनेस वैल्यू. जो ज्यादा फिट होगा उसका फिटनेस स्कोर ज्यादा होगा, जो जितना कम फिट होगा उसका फिटनेस स्कोर कम होगा. तो ट्रेंड क्या कहता है? ट्रेंड ऐसा कहता है कि भाई जिसका फिटनेस वैल्यू या फिटनेस स्कोर ज्यादा होगा, यानी कि इन शॉर्ट जो इंडिविजुअल ज्यादा फिट होगा उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल अगले जनरेशन को पास कर पाए. उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी, बराबर. लेकिन अगर कोई बंदा बहुत ही कम फिट है, उसका फिटनेस स्कोर बहुत ही कम है, तो उस इंडिविजुअल की बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे जनरेशन में पास कर पाएगा. बहुत ही कम पॉसिबिलिटी उसकी बन जाती है. ठीक है, और फिर जो सिलेक्ट हो जाते हैं एज ए इंडिविजुअल, मान लीजिए मेरे पास n इनिशियल पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स थे, ये साइज है मेरी इनिशियल पॉपुलेशन की, और फिर उसमें से मुझे क्या करना है? एनपी इंडिविजुअल्स को चुनना है. एनपी इंडिविजुअल्स को चुनना है, यानी कि ये मेरे सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है, ये मेरा काउंट है. इतने मुझे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है, which is actually a subset. मतलब बहुत कम. मतलब अगर आप इसको पकड़ोगे कि भैया 100 इंडिविजुअल्स हैं, तो ये मैं 10 को सिलेक्ट करूंगा. इस तरीके से आंकड़ा आप इमेजिन कर सकते हो. अच्छा, सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट करने के बाद हमें इन्हें एज अ पेरेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज ये जो है इंडिविजुअल्स जब ये पेरेंट होंगे तो ये फिर आगे जाएंगे रिप्रोडक्शन फेज में, वहां क्रॉसओवर होगा, फिर म्यूटेशन होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं. तो यहाँ तक तो समझ में आ गया. तो अभी हमें यही एनपी इंडिविजुअल्स चुनने हैं, और हर एक इंडिविजुअल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 इंडिविजुअल 100 में से चुनने हैं, तो हर एक इंडिविजुअल 10 में से जो चुना जाएगा उसके लिए एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा. तो अगर मुझे 10 इंडिविजुअल्स को चुनना है 100 में से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 10 टूर्नामेंट को कंडक्ट करूंगा. इन शॉर्ट या फिर इन जनरल, अगर मुझे n में से np इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं हर एक इंडिविजुअल के लिए एक टूर्नामेंट कंडक्ट करूंगा. वो विनर बन के बाहर निकलेगा, एज अ पेरेंट ट्रीट किया जाएगा और फिर रिप्रोडक्शन फेज में जाएगा. तो इन शॉर्ट यहाँ पे np टाइम्स जो आपका टूर्नामेंट है वो कंडक्ट किया जाएगा. अभी कंडक्ट होता कैसे है वो देखते हुए समझते हैं. सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? You have to select. What you have to select? You have to randomly select k individuals from your population. Randomly, जो आपका इनिशियल पॉपुलेशन उसमें से k इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लो. यहाँ पे k का आंकड़ा दे दो 8, जो k की वैल्यू यहाँ पे 8 दे दो. तो मैंने यहाँ पे 8 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया रैंडमली. मैंने उनकी फिटनेस वैल्यू नहीं देखी, कुछ नहीं, बस रैंडमली उठा लिया और यहाँ पे डाल दिया. बराबर. अब इनके बीच में मुकाबला होगा. बराबर, इनके बीच में मुकाबला होगा, और मुकाबले में जो जीतेगा वो ऑब्वियसली आपका फाइनल विनर होगा, और वो फाइनल विनर होने के बाद वो आपका बन जाएगा एज अ पेरेंट, और फिर वो रिप्रोडक्शन फेज में जाके ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करेगा. बराबर, तो वो फिर बाद में आपका पेरेंट बनने वाला है, लेकिन पहले उसे मुकाबला जीतना है, मुकाबले का विनर बनना है. तो यहाँ पे ये सारे कैंडिडेट्स हैं. These are all the candidates to win that tournament. बराबर, और ये जो उनके नीचे आपको आंकड़ा दिख रहा है, These are nothing but their fitness value. ये क्या सिग्निफाई करते हैं फिटनेस वैल्यू? ये सिंपली बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसका नाम समझ लो ए है, ये कितना फिट है एज कंपेयर्ड विद द अदर इंडिविजुअल्स. ठीक है, इस तरीके का वो सिग्निफिकेंस है. अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये टूर्नामेंट काम कैसे करता है. सिंपल सी बात है, मुझे इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में इनिशियली मुकाबला लगाना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ए और बी है, तो यहाँ पे मैंने ए सिलेक्ट किया. क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो कि इनमें से भाई कौन ज्यादा सिग्निफिकेंटली फिट है. तो यहाँ पे 19-20 का मामला था, 19-20 का मामला, ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक से हार गया भाई अपना बी, बस. तो यहाँ पे मेरा ए सिलेक्ट हो गया. बराबर, उसके बाद यहाँ पे कौन जीता? ऑब्वियसली सी जीता. इन दोनों में भाई एफ जीता, बिकॉज इसका 7 था, इसका 4 था. और यहाँ पे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फिटेस्ट जो दिख रहा है वो जी भाई साहब है. ठीक है,
तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 3 है, तो इसमें से फिर वो जी जीत गया। अभी देखते हो जी के मेरा फाइनल विनर बन पाता है या नहीं। उसके बाद क्या करूंगा, ये मेरे 1 लेवल ऑफ विनर है, इनको फाइनल विनर बनने में भी टाइम है, ओके, इनको बनना है। तो अभी क्या करना है भाई, फिर अभी हम लोगों को ए और सी में करना है। तो इसमें से कौन जीता भाई, सी का आप देखोगे तो 6 है, ए का देखोगे तो 9 है, तो 9 और 6 में से कौन ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो भैया यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद एफ और जी में से कौन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जी जीत जाएगा, बराबर, क्योंकि वो ज्यादा फिट है भाई। तो जो ज्यादा फिट है वो ऑब्वियसली कमजोर को हरा देगा और जीत जाएगा और अगले लेवल में जाएगा। अब भैया ये लोग आ गए, व्हाट वी कैन से सेमीफाइनल में आ गए, बराबर। अब ये सेमीफाइनल की टक्कर है, ओके। तो अभी यहाँ पे फाइनल, I should say this is a final, not a semi-final. Okay, this is a final. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, A और G है भाई अभी, ठीक है। A और G में अभी देखते कौन है, ये 9 है और ये 11 है, इसमें से ज्यादा फिट कौन है, ऑब्वियसली इट इज अ G। तो मेरा फाइनल विनर कौन बन जाता है, G। तो अभी G जो बन गया है ये मेरा एज अ पेरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो एज अ पेरेंट हो जाएगा। और इसी तरीके से मुझे जितने भी अगले पेरेंट्स है, जितने भी इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना होगा, हर बार मुझे क्या करना होगा, रैंडम selection of individuals, conducting tournament, selecting the final winner as a parent, again conducting the same thing। जब जितने आपको चाहिए, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको NP individuals चाहिए, ओके, तो आपको NP टाइम्स इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको फिर उतने ही पेरेंट्स मिलेंगे, या फिर यूं कह लो कि आपको उतने ही इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो कि आगे रिप्रोडक्शन फेज में जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को मैंने काफी आसान करके बताया, आप तक पहुंचा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ, I hope you understood this. Okay, tournament selection, how can it is carried out. Next one is the fourth method is selection is the steady state selection. Here in this method, this is not a particular method of selection parent. Okay, this is not particular method. Select a good parent from population. Okay, create children, evaluate if new offspring is better than bad individuals in the population, replace bad individual with the new offspring. The rest of population survives to the new generation. Means what we have to do, we have to generate, okay, good and bad. Okay, if I prepare, I will take 2-1 from good, I will generate new offspring. Okay, if it is good, then I will replace here, okay, in bad. Okay, जो काय bad आहे त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंट करणार आहे. In this method, a few good chromosomes are used for creating new offspring in every iteration. This some bad chromosomes are removed and then new offspring placed in their place. Means here some bad chromosomes are there, we can remove this new offspring and new offspring we can kept here. This rest of population migration to the next generation without going through the selection process. Okay, next one is the general algorithm for G. Now selection is over. Next one is the reproduction. The reproduction means we can say that reproduce alien. In the reproduction, now we will see which are the parts. आता रिप्रोडक्शन मध्ये कुठले कुठले पार्ट्स असतात बघूया. Okay, I will go to that diagram only. Okay, this one is the selection part. Okay, if you see carefully, okay, this evaluation of fitness and selection of parent we can done with the 4 methods. One is the roulette, second one is the tournament, ranking, and the steady state. Okay, with the help of that we can select the parent. The parent select झाला. Next, reproduction. Reproduction consists of, this one is the very important in our genetic algorithm. Okay, on this only, okay, our whole process is going on. In crossover, in the reproduction, crossover, mutation, and inversion, these things are occurred in the reproduction. Which are those? Crossover, mutation, and inversion. Okay, which are those? Now we are going to discuss here. Okay, या ठिकाणी आपण रिप्रोडक्शन मध्ये क्रॉसओव्हर कशा पद्धतीने केलं जाणार आहे, म्युटेशन कसं केलं जाणार आहे. ओके, म्युटेशन मीन्स might be you have seen, okay, now corona is there, corona's mutation is omicron or a delta variant.
ओके, दीज आर द म्युटेशन्स ऑफ कोरोना. कोरोना जे हे काय आहे तर त्या ठिकाणी म्युटेशन आहे. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं तर दे हॅव चेंज द स्ट्रक्चर, त्याचं फिजिकल स्ट्रक्चर ॲज वेल ॲज ओके द स्टाईल ऑफ इन्फेक्शन इट इज चेंज. ड्यू टू दॅट वी कॅन इट इज कॉल्ड ॲज न्यू व्हॅरियंट और द न्यू म्युटेशन ऑफ कोरोना. त्याला न्यू म्युटेशन असं म्हणतात. ओके, मीन्स इट इज डेल्टा म्युटेशन और द we can say Omicron. Omicron, it is one mutation of that genetic. Now just we will see and the methods in these three processes, crossover, mutation and inversion, how we can carry it out. In next lecture we will discuss. First just we will go through it. Reproduction means what is meant by reproduction, and we will finish today's session. The next step is to generate second generation population of solution from those selected to genetic operation, crossover and mutation. Okay, the new mutation किंवा न्यू जनरेशन तयार करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागणार आहे तर जेनेटिक चेंज करायला लागेल. त्यामध्ये जेनेट्स चेंज करायला लागेल. मीन्स 1 चा 0 करायला लागेल. इन बायनरी कोडिंग वी कॅन कन्वर्ट 1 to 0 or 0 to 1. Means we are converting that and we are generating new offspring or the new baby. Okay, for each new solution to be produced, a pair of parent solution is selected for breeding from the pool selected previously, producing a child solution using above methods of the crossover and mutation. A new solution is created which typically shares many of the characteristics of the its parent. New parent are selected for each child and the process continue until new production solution appropriate size is generated. Okay, just wait a minute, otherwise time is over. Okay, this crossover and mutation we'll discuss in next lecture. If you have any problem you can ask, otherwise you can write your roll number writing in front of your division. Okay, तुमचं डिव्हिजन पहिल्यांदा टाका आणि नंतर रोल नंबर टाका सर. If you have any problem you can ask, otherwise you can write your roll numbers and you can leave the meeting, no problem. बोलिए सर. काय हो? हाँ 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 ती हाँ हाँ बर बर शेअर करू का त्यांनी. बर बर चालेल चालेल बर. हाँ सांग.